Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Julius Caesar. Learning objectives: to understand the play, to comprehend Julius Caesar's dilemma. Warm up: Julius Caesar. Foreshadowing ideas of March Julius Caesar, assassinate Mark Antony, triumvirate, Calpurnia, conspiracy, soothsayer, Octavius, Philippi, tragedy, Cassius, Flavius, suicide, Brutus, Pompey, Portia, senate, कास्का, रूलर, रोम। बच्चों यहाँ पे आपको जूलियस सीजर से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। आपको इन वर्ड्स को, ये जो यहाँ पे पजल दिया गया है, वर्ड पजल दिया गया है, यहाँ पे इन्हें सर्च करना है और सर्कल करना है, ये आपकी एक्टिविटी है। William Shakespeare 1564 to 1616 was an English poet and playwright. He is widely considered as the greatest writer in English literature. He is also one of the best dramatists the world has known. He wrote about 38 plays, 154 sonnets and many poems. His works have been translated into many languages and his play have been performed all over the world. His words will live on forever as he is the most quoted writers in the literature of the English speaking world. बच्चों यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं, जो कि हैं विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ये एक इंग्लिश पोएट थे और प्ले राइट थे और इन्हें वाइडली कंसीडर किया जाता है एज अ ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इनको जाना जाता है बेस्ट ड्रामेटिस्ट के नाम से और इन्होंने काफ़ी सारे प्लेज लिखे हैं, काफ़ी सारे सोनेट्स लिखे हैं एंड काफ़ी पोम्स भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। इनकी जो लिखी हुई नॉवेल्स हैं उन्हें काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। Julius Caesar 100 BC to 44 BC was a powerful Roman general. His role in the transformation of the Roman Republic into Roman Empire is incomparable. Caesar fought a good many of military battles and brought back great riches to Rome. William Shakespeare's this play is all about the life of Julius Caesar. It is an exciting play with many colors, characters, some popular speeches and lots of actions. बच्चों, जूलियस सीजर जो है एक पावरफुल रोमन जनरल है, ठीक है। इसमें जो रोल्स हैं वो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं ऑफ द रोमन रिपब्लिक इनटू रोमन एम्पायर, जो कि इनकम्पेरेबल कहलाता है। मतलब इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये इतना अच्छा प्ले, इतना अच्छा रोमन जनरल लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। इसमें एक सीजर था जो कि लड़ा था काफ़ी सारे रोम्स के सिपाहियों के साथ। विलियम शेक्सपियर जो हैं वो इस रोल के बारे में बताते हैं जूलियस सीजर के कि ये एक एक्साइटिंग प्ले है जिसमें आपको बहुत सारे कलरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स: जूलियस सीजर द ग्रेट रोमन जनरल, कालपुर्निया Caesar's wife, Mark Antony, the one true friend of Julius Caesar, Brutus, another dear friend of Caesar who turns against him, Decius, one of the conspirators sent to make sure that Caesar goes to the Capitol. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया जो कि जूलियस सीजर, फिर उनकी वाइफ है कैलिफोर्निया, ठीक है। उनका एक अच्छा फ्रेंड है मार्क एंटोनी और ब्रूटस है जो कि उनका एक और फ्रेंड है, डियर फ्रेंड है, ठीक है, जो बाद में उनके अगेंस्ट टर्न हो जाता है। डिसियस जो कि एक कॉन्स्पिरेटर है, जो कि सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचता रहता है। जूलियस सीजर द पावरफुल रोमन जनरल has just returned to Rome after defeating in battle his enemies, the sons of another general named Pompey, as Caesar parades through the cheering crowds who love him. The men in authority become nervous watching his growing powers and popularity among the common people. They begin to conspire against him, the evil Cassius, the jealous Casca, and finally the gentle Brutus. All plans to bring Caesar to the Senate house or the Capitol and kill him. बच्चों, जूलियस सीजर एक पावरफुल रोम जनरल था, ठीक है, और वो रोम
वापस आया था आफ्टर डिफीटिंग बैटल, मतलब अपने जो दुश्मन सिपाही थे उनको वो हरा करके अपने जो उसका देश था वहाँ पे वो वापस आया था। ठीक है, अब सीजर जो था वो परेड करता हुआ आया था थ्रू चेयरिंग क्राउड्स हु लव हिम, जो लोग उसे पसंद करते थे तो वो अपनी राजा की जीत से क्या हुए थे, खुश हुए थे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे जला करते थे, उससे जेलसी फील किया करते थे और इसी चक्कर में वो क्या करते थे, उसे मारने का षड्यंत्र हमेशा रचते रहते थे। California Caesar's beautiful and loving wife begs him not to go to the Capitol, but Decius, one of the conspirators, convinces Julius Caesar to go with him to the Capitol, where he is to be assassinated. He had earlier been warned to be careful of the ideas of March. It was the 15th of March today. अब कैलिफोर्निया जो थी, कैलिफोर्निया वो कौन थी, वो सीजर की वाइफ थी। ठीक है, वो हमेशा उससे आगाह करती रहती थी कि तुम जो डीसीएस है उससे बच के रहो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या करता रहता है, कॉन्स्पिरेसीज करता रहता है। तो एक तरह से वो उसको दुश्मन मानती थी, लेकिन जूलियस सीजर को नहीं पता था और वो एक दिन रेडी हो जाता है किसके साथ जाने को, डीसीएस के साथ जाने को। कहाँ पे? कैपिटोल में। ठीक है, नाउ सीन 1, सीजर्स हाउस, टेरिबल थंडर एंड लाइटनिंग, एंटर सीजर। सीजर, what a terrible storm! Neither the sky nor the earth was peaceful during the night. Even Calpurnia herself, while asleep, called out 3 times, "Help! Help! They are about to murder Caesar." Enter Calpurnia. Calpurnia, Caesar. What are you thinking about? Are you still thinking of going out? I will not allow you to even step outside the house today. सीजर, आई शेल सर्टनली गो आउट। वाई? तो बच्चों यहाँ पे सीन 1 के बारे में बताया गया है कि सीन 1 में सीजर्स के हाउस के बारे में बताया गया है कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है। थंडर मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो फिर सीजर एंटर करता है। सीजर कहता है कि कितना टेरेबल स्टॉर्म है बाहर, ना स्काई दिख पा रहा है ना ही अर्थ दिख पा रहा है। ठीक है, और वो कैलिफोर्निया से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और कैलिफोर्निया जो होती है वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है कि प्लीज़ कोई तो सुन लो मेरी बात, इनको मैं बाहर जाने नहीं देना चाहती और ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। तो सीजर कहते हैं कि मैं तो जाऊँगा, क्योंकि कैलिफोर्निया जो थी वो उन्हें रोक रही थी बाहर जाने से, और सीजर जिद कर रहा था कि भाई मैं तो जाऊँगा, तो मुझे भला क्यों रोक रही हो। कैलिफोर्निया, आई हैव नेवर अटैच मच इम्पोर्टेंस टू ओमेंस। सीजर, but I am frightened of them today. Many unusual things have been witnessed and reported. A lioness has given birth to her young ones on the street of Rome. Graves with dead bodies have opened wide. Soldiers have been seen fighting among the clouds. Their blood fell like a rain upon the Senate house in the Capitol. Caesars, what is determined by the mighty gods cannot be avoided. I shall go. California, when princes are to die, the very heaven proclaim the coming calamity. Caesar, cowards die many times before their actual death. The brave experience the agony of death only once. Why do people fear death, which is unavoidable? California, stay indoor for my sake. Mark Antony will convey your message to the Senate that you are ill. तो सीजर कहता है कि भाई तू मुझे जाने से क्यों रोक रही हो, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो वहाँ जाना है। तो कैलिफोर्निया कहती है कि सुबह से कुछ भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं हो रही, मतलब सब कुछ अपशगुन हो रहा है। ठीक है, वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है इन सब चीज़ों को देखकर। लाइनस जो है उसने बर्थ दिया है, मतलब एक छोटे से बेबी को उसने बर्थ दिया है रोम की स्ट्रीट में, और जो सोल्जर्स हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं तलवार लेकर के। तो सीजर कहता है ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे तो जाना ही है, मैं कुछ चीज़ है जो अवॉइड नहीं कर सकता। तो कैलिफोर्निया कहती है कि नहीं, प्रिंसेस जो होते हैं वो मरने के लिए नहीं होते। ठीक है, आप मतलब आप लड़ने के लिए बने हो, आप मरने के लिए नहीं बने। तो फिर वो कहता है कि अरे कावर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी बार मरते हैं एक्चुअल डेथ से पहले, मतलब आप डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको पता है डेथ तो आनी है, मतलब एक दिन सबको मरना है, तो फिर हम डेथ से कैसे बच सकते हैं। तो कैलिफोर्निया से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे लिए आप घर के अंदर रुक जाओ, क्योंकि उसे डर था कि उसके पति पे क्या होने वाला है, हमला होने वाला है। सीजर, वेरी वेल, आई विल नॉट गो फॉर योर सेक. Here is Decius, he shall tell them so.
Decius, good morning, noble Caesar. I have come to accompany you to the Capitol. Caesar, I will not go to the Senate's house today. Tell the senators that I am not coming. California had a dream last night. She saw my statue having 100 spouts like a fountain. From each of these spouts ran blood instead of water. She also saw many Romans bathing their hands in my blood. She think that some evil will overtake me. So she has requested me to stay at home today. ठीक है, अब इतनी देर में जो डीसीएस था उसकी एंट्री होती है. वो कहता है कि चलो चलें क्या. तो डीसीएस उनको विश करता है और बोलता है चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो. तो सीजर कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ सीनेट के हाउस नहीं जा सकता. तुम उनको कहना कि मैं किसी और दिन आऊँगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने कल रात को एक भयानक सपना देखा था और वो सपने में देखती है कि मेरी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है. मतलब जो दुश्मन देश के सिपाही थे उन्होंने मुझे क्या कर दिया है, मार दिया है. तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि आज तुम प्लीज़ घर पर रुक जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा. Decius, this is a wrong interpretation of the dream. Romans bathing in your blood only shows that your vitality shall renew the strength of them. Rome shall draw strength from you. If you don't come, the Senate may change its decision to offer you a crown today. Caesar, how foolish do your fear appear now. California, fetch me my robe. I shall not stay at home. They all leave. ठीक है, जब वो डीसीएस को बताता है कि मेरी वाइफ ने एक बुरा सपना देखा था, तो डीसीएस कहता है ये सब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, इसका कुछ और मतलब भी निकल सकता है. हो सकता है कि इसका मतलब हो कि तुम और ज़्यादा क्या बनते जा रहे हो, पावरफुल बनते जा रहे हो, तुम्हारी जो सेना है वो और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है. तो ऐसे में तुम्हें घर से बाहर जरूर जाना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तुम डर के घर के अंदर बैठ गए हो. तो सीजर अपनी वाइफ को कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे भी यही लग रहा था, और डीसीएस ने भी बोला कि तुम्हारी ये जो बातें हैं ये फुलिश हैं. वो कहता है कि लाओ मुझे मेरा रॉब पकड़ाओ, मैं घर के अंदर नहीं रुकने वाला, और वो वहाँ से चले जाते हैं. सीन 2. द सीनेट हॉल इन रोम. कासा, कैसियस एंड सीना आर ऑल कॉन्स्पिरेटर हु हेट सीजर. साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स. एंटर सीजर, ब्रूटस, कैसियस, कासा, डीसीएस, Metellus, Antony and others. Metellus, most high, most powerful and most potent Caesar, I place my humble heart in front of you. Caesar, I cannot allow you to do so. Cimber, don't be so foolish as to think that your flattering words, bowing or cringing will change my heart. Your brother has been exiled under legal orders. My decisions are always just and I will not change them. Brutus, I have no intentions to flatter you, but I beg you to recall Publius Cimber's sentence of banishment immediately. Caesar, you too, Brutus. Cassius, I also fall at your feet to plead for the recall of Publius Cimber. अब जब वो सीन यहाँ पे 2 दिखाया जाता है, ठीक है, अब वो जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, सीनेट हॉल में पहुँच जाते हैं. ठीक है, सीनेट हॉल में पहुँच जाते हैं तो बाकी के लोग भी वहाँ पे होते हैं, जैसे कि कास का होता है, कैसियस, सीना, ये सब जो होते हैं ये इनके किसके खिलाफ होते हैं, ये सीजर के खिलाफ होते हैं, लेकिन ये उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम तुम्हारे क्या हैं, फ्रेंड है. तो उनमें से मेटालस जो होता है वो उसे बटरिंग कर रहा होता है. वो कहता है अरे तुम तो मोस्ट पावरफुल हो, मोस्ट हाई हो, मोस्ट पोटेंट हो. तो फिर वो उसकी बटरिंग कर रहा होता है, उसकी क्या कर रहा होता है, तारीफ़ें कर रहा होता है, उसकी तारीफ़ों को पुल बांध रहा होता है. तो सीजर उसे कहता है कि ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बटरिंग करने की, फ्लैटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे पता है कि तुम्हारे जो वर्ड्स हैं उनके पीछे का इंटेंशन क्या है. मैं तुम्हारे ब्रदर को नहीं छोड़ने वाला. मतलब उसने शायद उसके ब्रदर को बंदी बना रखा था, तो कहता है मैं तुम्हारे ब्रदर को नहीं छोड़ने वाला, मेरा डिसीजन जो है वो सेम ही रहेगा. तो ब्रूटस कहता है कि मेरी तुम्हारे को फ्लैटर करने की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, बट मैं बेग करता हूँ कि तुम पब्लियस काइम्बर को क्या करो, रिकॉल करो, उसके जो सेंटेंसेस थे उसे तुम रिकॉल करो, मतलब उसे तुम याद करो. सीजर कहता है कि ये चीज़ भी तुम करो. तो कैसियस कहता है कि मैं तुम्हारे पैर पर गिरा था और मैं उसके लिए भीख मांग रहा था. फिर सीजर क्या कहता है, सीजर कहता है आई एम लाइक द पोल स्टार, like the pole star are do not change my position. I will not change my mind. Cimber would remain banished. Cassius, let my hands express my view in this matter. First Cassius stabs Caesar, then the other
conspirators do so, and lastly his friend Brutus does the same. ठीक है, अब जब सीजर उससे कहता है कि मैं पोल स्टार की तरह हूँ, मेरा डिसीजन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब मैंने जो कह दिया और कह दिया, मतलब मैं अब अपनी बात से मुकर नहीं सकता। तो कैसियस कहता है कि ठीक है, मैं भी अपने हैंड्स जो है क्या करना चाहता हूँ, मैं भी अपने व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और वो सबके सब एक एक करके सीजर को क्या करने लग जाते हैं, स्टैब करने लग जाते हैं, उस पर चाकू से वार करने लग जाते हैं। सीजर, व्हाट यू डू ब्रूटस, देन लेट मी डाई। सीजर डाइज। सीना, we have freedom and liberty at last. Operation is over. Cassius, let some of you go to the public platforms and shout the slogans of liberty, freedom and equality for all. There is chaos outside. People are horrified that Caesar has been killed. There is panic and confusion in Rome. ठीक है, अब सीजर के लास्ट वर्ड क्या आते हैं कि ये तुमने क्या किया ब्रूटस, क्या तुम भी मतलब इन लोगों की तरह निकले, तुम भी कॉन्स्पिरेटर निकले, और इतना कहकर सीजर जो है वो मर जाता है। तो वहाँ पे जो सीना होता है वो कहता है कि अब हमें क्या मिल गया है, फ्रीडम मिल गया है, अब हम क्या कर, अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसियस भी कहता है ठीक है चलो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और ये स्लोगन, ये नारा वहाँ पे लगाते हैं कि हमें क्या मिल गई है, लिबर्टी मिल गई है, आज़ादी मिल गई है, और अब हम खुल के जिएंगे, खुल के क्या करेंगे, ऐश करेंगे, मतलब अब हम ही यहाँ के राजा है, ठीक है। और ये जो बात थी ये पूरे शहर में फैल गई थी कि सीजर जो है वो अब मारा जा चुका है, और अब पूरे रोम में पैनिक फैल गया था, कन्फ्यूजन फैल गई थी कि किसने उसे मारा और क्यों मारा, मतलब अब कौन राजा बनेगा। सीन थर्ड, एंटर मार्क एंटोनी ब्रूटस। हियर कम्स एंटोनी, आई वेलकम यू मार्क एंटोनी। एंटोनी एड्रेसिंग सीजर्स डेड बॉडी, ओ ग्रेट सीजर, only a little while ago you stood above mankind like a tower, but now you lie low on the ground, turning to the conspirators. If you want to kill me, do so. I would like to die here beside Caesar. Brutus, oh Antony, do not ask to die at our hands. We killed Caesar for the people of Rome who had been wronged by Caesar's tyranny. Antony, I wish to know more. I beg, however, that you permit me to carry Caesar's body to the forum and say a few words from the rostrum, as a friend should do during the funeral ceremony. Brutus, well, you are granted the permission, but I shall mount the rostrum myself first and explain why Caesar was put to death. All leave except Antony. ठीक है, अब एंटनी कौन था, एंटनी सीजर का फ्रेंड था, तो थर्ड सीन में उसकी एंट्री होती है। तो ब्रूटस कहता है देखो देखो कौन आया, एंटनी आया, तो कहता है मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ। तो एंटनी सीजर की बॉडी की तरफ दिखता है, वो कहता है कि तुम कितने महान थे, ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी क्या हुई थी, बातचीत हुई थी, अब तुम्हें किसी ने मार डाला और तुम ग्राउंड में पड़े हुए हो। तो फिर वो ब्रूटस से कहता है कि अगर तुम्हें चांस है या तुम्हारे पास मौका है तो तुम मुझे भी क्या करो, मार डालो, मैं भी सीजर के साथ ही जाना चाहता हूँ। तो ब्रूटस कहता है कि अरे ये चीज़ें मेरे हाथ में तो नहीं है, मैंने सिर्फ सीजर को किल किया क्योंकि मैं जो रोम के लोग थे उनको क्या करना चाहता था, आज़ाद करना चाहता था। वो कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिर एंटनी कहता है कि आई विश टू नो मोर, मतलब मैं अब और जानना नहीं चाहता, मैं तुमसे बेग करता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे परमिट करो ताकि मैं सीजर की जो डेड बॉडी है उसे ले जा सकूँ और जो उनका लास्ट का जो फ्यूनरल होता है, क्रियाक्रम होता है, वो अच्छे से कर सकूँ। तो ब्रूटस कहता है ठीक है, परमिशन तुम्हें मिली, जाओ जाके ले जाओ, ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। Antony, addressing Caesar's dead body, forgive me for being polite and submissive with your murderers. You are the remains of the noblest man that ever lived. I hereby predict that there will be fierce civil war. Famine, sword, fire and war will be widespread. Dead bodies will lie decaying with no one to bury them. Leaves with Caesar's body. अब एंटोनी जो होता है वो सीजर की बॉडी से ये बात कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे जो मर्डर था, तुम्हें खून करने वाला था, उसके साथ मैंने बहुत पोलाइटली बात की, ठीक है। अब जो तुम्हारे रिमेन हैं, तुम्हारे जो मर्डर हैं, वो ऐसे ही मतलब उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि मैं एक वॉर करूँगा, घोषित करूँगा इनके खिलाफ, ठीक है। मतलब मैं इन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा, मैं इनके खिलाफ वॉर करूंगा और तुम्हारा जो बदला है वो कौन लूंगा, मैं लूंगा। आफ्टर ब्रूटस एंटोनी एड्रेसेस द रोमन्स,
he is able to convince them that Caesar was not a dictator and that he loved them. He instigates them to revenge. Before the angry crowd reacts, the conspirators flee in terror. The war begins. The armies of Caesar and Antony clash with those of Brutus and Cassius. Brutus and Cassius are defeated and both commit suicide. Read the play quietly, then do the group reading. You could have a class play. ठीक है, अब उस सीन के बाद जो एंटनी था वो रोमन्स के लोगों को एड्रेस करने के लिए गया, जो रोमन्स थे उन्हें एड्रेस करने के लिए गया। ठीक है, उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया और एक उन्हें भाषण दिया। वो कहता है कि तुम्हें जो भी बताया गया है सीजर के बारे में गलत बताया गया है। ठीक है, वो एक डिक्टेटर नहीं था, वो बल्कि तानाशाह नहीं था, बल्कि वो क्या करता था, तुम्हारे बारे में सोचा करता था, वो तुमसे प्यार किया करता था। और अब हमें क्या लेना चाहिए, रिवेंज लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए उसकी मौत का। ठीक है, जो उसके कॉन्स्पिरेटर हैं वो मारे जाएंगे, मतलब जिन्होंने उसका मर्डर किया है हम उनसे क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और उन्हें युद्ध में हराएंगे। ठीक है, तो वो सबको इकट्ठा करता है, अपनी एक सेना बना लेता है। अब जो उसके कॉन्स्पिरेटर थे जिन्होंने मारा था सीजर को, तो वो सारे क्या हो गए, अलर्ट हो गए। ठीक है, और वो टेरर के कारण क्या हो गए, भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था वो तो कम ही लोग हैं, उनके पास सेना भी नहीं है। ठीक है, और जो एंटोनी था उसके पास तो सेना थी और बहुत सारे लोग थे, तो वो इस टेरर में, इस डर में वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, फिर एक वॉर जो होती है वो छिड़ जाती है। तो जो सीजर और एंटनी की वॉर थी वो किसके साथ छिड़ जाती है, ब्रूटस एंड कैशियस के साथ छिड़ जाती है। तो ब्रूटस और कैशियस जो थे वो डिफीट हो जाते हैं, मतलब वो उस लड़ाई में हारे जाते हैं और बाद में वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों सुसाइड कमिट कर लेते हैं। मतलब उन लोगों की हाथों से मारे जाने की बजाय वो कहते हैं कि हम अपनी जान खुद ही ले लेंगे, तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब वो कहते हैं यहाँ पे कि अगर डिटेल में आपको इस प्ले के बारे में जानना है तो आपको इसे अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट उसमें से लिया गया है और हमें बताया गया, समझाया गया है जूलियस सीजर के बारे में। तो बच्चों, आई होप आपको ये प्ले अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।